Hello everyone, this is Siraj Khan and I welcome you all on behalf of Professor Ram Meghe College of Engineering and Management, Batnera. In today's lecture, we are going to see application of Laplace transform and particularly solution of simultaneous linear differential equations by using Laplace transform. Before that, we have seen solution of linear differential equation by using Laplace transform. Here we are saying solution of simultaneous linear differential equations. So it is clear that differential equation involves derivatives and यहाँ पे हमें differential equation को solve करना है by using Laplace transform. It means that कि कहीं तो भी हमें Laplace transform of derivative का property use करना होगा. Differential equation solve करना है, it means that differential equation contains derivative. Or we are solving it by using Laplace transform. It means that in between the solution somewhere कहीं तो भी हमें Laplace transform of derivative का property use करना होगा. So we will start with definition, means notations for Laplace transform of function along with Laplace transform of derivatives. So we know that Laplace transform of y of t, it is equal to capital Y of s. Before that, in general, we use this notation Laplace transform of function f of t, it is equal to capital F of s. ये notation हमने generally use किया है. तो f of t को capital F of s, तो Laplace transform of y of t जो रहेगा, it will be capital Y of s. And similarly, Laplace transform of x of t, it is capital X of s. Okay. Now we know that properties of Laplace transform of derivative. So ये हो गए notations for function. Laplace transform of y of t will be denoted as capital Y of s. Laplace transform of x of t will be denoted as capital X of s. After that, notations for derivatives of these function. By using property of Laplace transform of derivatives, we have Laplace transform of dy by dt, it is equal to s into capital Y of s minus small y of 0. And Laplace transform of second order derivative, d2y by dt square, it is equal to s square into capital Y of s minus s into small y of 0 minus y dash of 0. Laplace transform of first order derivative and Laplace transform of second order derivative. Similarly, we can write Laplace transform of derivatives of function x. Variable x के derivatives, parameter x जो है यहाँ पे, उसके derivatives के लिए भी हम similar way से यहाँ पे formula लिख सकते हैं. We are having Laplace transform of dx by dt, it is equal to s into capital X of s minus small x of 0, and Laplace transform of d2x by dt square, it is equal to s square into capital X of s minus s into small x of 0 minus x dash of 0. So properties for Laplace transform of derivatives of y and derivatives of x, both are similar to each other. The only difference is डेरिवेटिव ऑफ y अगर रहा तो वहां पे वेरिएबल y हमें राइट हैंड साइड पे यूज करना है, और डेरिवेटिव ऑफ x है तो वहां पे राइट हैंड साइड पे वेरिएबल x यूज करना है. रिमेनिंग फॉर्मूले का जो फॉर्मेट है वो कंप्लीट सेम है. ठीक है. सो अब अगर जो साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम सोल्व करने वाले हैं, तो उसमें अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आता है तो ही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमें यूज करना है. अगर सपोज प्रॉब्लम के अंदर सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स प्रेजेंट है तो फिर हमें सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के फॉर्मूले को ही यूज करना है. ओके. आफ्टर दैट, प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द फर्स्ट स्टेप, अप्लाई Laplace transform to given simultaneous linear differential equations. इट इज द फर्स्ट स्टेप. जो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेंगे, गिवन रहेंगे, उस पे हमें Laplace transform अप्लाई करना है. सेकंड स्टेप, अप्लाई गिवन इनिशियल कंडीशंस. Given initial conditions, तो some initial conditions will be given. प्रॉब्लम जो हम सोल्व करेंगे वहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस वहां पे गिवन होते हैं. एंड व्हाई देयर इज नीड ऑफ दिस इनिशियल कंडीशन, जो हमने Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखा है, तो यहाँ पे इसमें है कैपिटल Y ऑफ s, इट इज नथिंग बट Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ y, बट ये स्मॉल y ऑफ 0, स्मॉल y ऑफ 0, small y dash of 0, small x of 0, small x dash of 0, इनके वैल्यूज हमेशा प्रॉब्लम के अंदर गिवन रहना चाहिए. ये वैल्यूज आते ही है, गिवन होते हैं प्रॉब्लम में डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ. सो इनिशियल कंडीशंस आर मस्ट
for solving these linear differential equations. Without initial conditions हम problem solve नहीं कर सकते. Initial conditions compulsory है. ठीक है, तो ये problem के अंदर given रहेंगे जो कि हमें second step में initial conditions apply करना है. Third step, solve simultaneous equations for capital X of S and capital Y of S as usual. मीन्स जैसे हम जनरल simultaneous equation solve करते हैं, simultaneous equation containing two variable जैसे हम solve करते हैं, कोई एक वेरिएबल को कैंसिल करते हैं, सेकंड वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर वो सेकंड वेरिएबल का वैल्यू यूज करके फर्स्ट वेरिएबल फाइंड करते हैं. जनरली साइमल्टेनियस इक्वेशन सोल्व करने का हमारा मेथड यही है कि वी मेक कोएफिशिएंट सिमिलर फॉर वेरिएबल्स. दोनों में से किसी एक वेरिएबल को हम कैंसिल करते हैं और वो एक वेरिएबल कैंसिल होने के बाद अदर वेरिएबल का वैल्यू हम फाइंड करते हैं. आफ्टर गेटिंग वैल्यू ऑफ दैट अदर वेरिएबल, again we will substitute this value in any one equation and find the value of remaining variable. So same method से हमें यहाँ पे capital X of S और capital Y of S ये दोनों के values find करना है. After that, find values of capital X of S and Y of S in terms of parameter S. ये तो बोल दिया कि simultaneous equation हमें solve करना है X of S और Y of S के लिए. Means हमें X of S और Y of S के values को वहां से find करना है. But these values should be in terms of parameter S. कैपिटल X और कैपिटल Y के वैल्यू हमें in terms of S फाइंड करना है. ये रहेगा फोर्थ स्टेप. फिफ्थ स्टेप, टेक इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल X एंड कैपिटल Y which will give required values of X of t and Y of t. वही कैपिटल X कैपिटल Y का वैल्यू आने के बाद हमें इसका इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म लेना है. तो इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल X of S will be small x of t. Inverse Laplace transform of capital Y of S will be small y of t, which will be the required values of X and Y. Simultaneous equation solve करना है means simultaneous equation containing two unknowns X and Y. Simultaneous equations containing two unknowns X and Y solve करना है. It means that कि हमें X और Y के values find करना है. Similarly here, simultaneous linear differential equation solve करना है. It means that we have to find the values of two unknowns X of t and Y of t. यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्व हो जाएगा और अननोन्स x और y की वैल्यू भी यहाँ पे आ जाएगी. ठीक है, सो दिस इज द प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. नाउ we will take a problem based on it. So solve following simultaneous equations using Laplace transform method. Now clearly it is mentioned here that we have to solve it by using Laplace transform method, and the equations are dx by dt it is equal to twice x minus 3y, dy by dt it is equal to y minus twice x, and initial conditions subject to x of 0 equals to 8 and y of 0 equal to 3. These are the initial conditions given in the problem. So first of all we will write given simultaneous equations as it is. dx by dt it is equal to twice x minus 3y, dy by dt it is equal to y minus twice x. दोनों जो given equations है वो मैंने पहले as it is लिख दिए. अभी प्रोसीजर हमने पहले ऑलरेडी देखा है कि व्हाट इज द प्रोसीजर. मेजर स्टेप्स अभी हमारे माइंड में है. फर्स्ट स्टेप, वी हैव टू टेक लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ दीज इक्वेशंस. सो टेकिंग लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ इक्वेशंस. तो पहले फर्स्ट इक्वेशन का लैप्लस ट्रांसफॉर्म लेना है. तो ये हो जाएगा लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ dx by dt इट इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा. इट विल बी 2 into लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ x and minus 3 into लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ y. सिमिलरली लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकंड इक्वेशन, so it will be Laplace transform of dy by dt that is equal to Laplace transform of y and minus 2 times Laplace transform of x. So we will get this equation. Laplace transform of dx by dt it is equal to 2 times Laplace transform of x minus 3 times Laplace transform of y, and Laplace transform of dy by dt it is Laplace transform of y minus 2 times Laplace transform of x. अब यहाँ पे हमें वैल्यूज पुट करना है. अभी नोटेशंस जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बोला है कि Laplace transform of x it will be denoted as capital X of s. Laplace transform of y it will be denoted as capital Y of s. So same will be in second equation. ठीक है, but on left hand side फर्स्ट इक्वेशन में हमें लिखना है Laplace transform of dx by dt का फॉर्मूला, और सेकंड में हमें लिखना है Laplace transform of dy by dt का फॉर्मूला. मींस Laplace transform of डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले में यहाँ पे लिखना है. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन Laplace transform of dx by dt we know that its formula is s into capital X of s minus small x of 0. ये हो गया फॉर्मूला फॉर
Laplace transform of dx by dt. Right hand side will be 2 times capital X of s and minus 3 times capital Y of s. ठीक है. सेकंड इक्वेशन Laplace transform of dy by dt. तो जो फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा है फर्स्ट इक्वेशन में वही फॉर्मूला नीचे रहेगा, बट चेंज क्या करना है, x की जगह पे अभी हमें यहाँ पे y यूज करना है. तो ये हो जाएगा s इंटू कैपिटल Y of s माइनस स्मॉल y of 0. And right inside Laplace transform of y, it is capital Y of s minus 2 times Laplace transform of x, it will be minus 2 times capital X of s. After that, अब Laplace transform तो हमने सॉल्व कर लिया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो एक स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया. सेकंड स्टेप ऑफ द प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया है कि इन सेकंड स्टेप वी हैव टू अप्लाई गिवन इनिशियल कंडीशंस. अब यहाँ पे हमने Laplace transform डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है, तो इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे x ऑफ 0 यहाँ पे प्रेजेंट है, y ऑफ 0 यहाँ पे प्रेजेंट है. ये x ऑफ 0 और y ऑफ 0 को हमें इक्वेशन से रिमूव करना है. और ये रिमूव कैसे होगे, फॉर दैट सम इनिशियल कंडीशन विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम. इसके वैल्यूज प्रॉब्लम के अंदर गिवन आते हैं. सो लेट्स चेक देम व्हाट आर देयर वैल्यूज. यहाँ पे प्रॉब्लम के अंदर लिखा है x ऑफ 0 इट इज इक्वल टू 8, y ऑफ 0 इट इज इक्वल टू 3. तो दोनों के वैल्यूज यहाँ पे गिवन है. So substitute these values here in the equation. X of 0 it is 8 and y of 0 it is 3. So first equation will become s into capital X of s minus 8. ये आ गया x of 0 की जगह पे equal to right hand side as it is. Second equation will become s into capital Y of s minus 3 equal to right hand side again it is as it is. Now अब ये initial conditions हमने apply कर दिए. Second step यहाँ पे हमारा complete हो गया. थर्ड स्टेप में हमने बोला था कि वी हैव टू सॉल्व साइमल्टेनियसली, वी हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली फॉर वेरिएबल कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई. अभी कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के लिए हमें ये इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. अब देखिए दो इक्वेशंस है, वी आर सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, टू साइमल्टेनियस इक्वेशन कंटेनिंग टू अननोन. टू अननोन मींस जो वेरिएबल का वैल्यू हमें फाइंड करना है. तो एक्स और वाई के वैल्यूज हमें फाइंड करना है. दो वेरिएबल यहाँ पे प्रेजेंट है एक्स और वाई. x और y these are मेन वेरिएबल जो हमें यहाँ पे फाइंड करना है. तो अभी x से ज्यादा टर्म यहाँ पे दिख रही है फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, y जो है इट इज प्रेजेंट एट टू डिफरेंट प्लेसेस. तो पहले तो हम क्या करेंगे कि वेरिएबल को पहले कंबाइन कर दो. वेरिएबल्स जितने हैं उसे लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आ जाओ, कांस्टेंट जितने हैं उसे राइट साइड पे ट्रांसफर कर दो. स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो इक्वेशन का आता है ax plus by इक्वल टू c, ax plus by इक्वल टू c, स्टैंडर्ड फॉर्मेट. वेरिएबल्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, कांस्टेंट ऑन राइट हैंड साइड. तो फर्स्ट इक्वेशन जो है we can write it as s into x of s minus 2 times x of s and plus 3 times y of s. ये राइट हैंड साइड पे जो वेरिएबल प्रेजेंट है इसे भी मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफर कर दिया, और ये जो माइनस एट लेफ्ट साइड पे था इसे मैंने राइट साइड पे ट्रांसफर किया, ये आ गया प्लस एट. सिमिलरली सेकंड इक्वेशन s into y of s minus y of s plus 2 times x of s. तो जो राइट हैंड साइड पे जो वेरिएबल प्रेजेंट थे इसे मैंने लेफ्ट साइड पे लेकर आ गया, और -3 जो लेफ्ट हैंड साइड पे था इसे मैंने राइट साइड पे ट्रांसफर कर दिया, ये हो गया +3. अभी वेरिएबल्स अरेंज हो गए कि लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल आ गए, राइट साइड पे कांस्टेंट आ गए. और इसमें सिंपलीफिकेशन कर सकते हैं कि वेरिएबल x इट इज प्रेजेंट एट टू डिफरेंट प्लेसेस. x जो है वो दो डिफरेंट प्लेसेस पे है, तो वी कैन टेक x ऑफ s कॉमन फ्रॉम हियर. यहाँ से हम x ऑफ s कॉमन ले सकते हैं. वैसे ही वी कैन टेक y ऑफ s कॉमन फ्रॉम हियर, यहाँ से y ऑफ s कॉमन ले सकते हैं. सो x ऑफ s फर्स्ट इक्वेशन से कैपिटल X ऑफ s अगर हमने कॉमन लिया तो रिमेनिंग रहेगा s माइनस 2. यहाँ से s रिमेनिंग रहेगा, यहाँ से ये -2 रिमेनिंग रहेगा. सो s माइनस 2 इंटू कैपिटल X ऑफ s प्लस 3 टाइम्स y ऑफ s इक्वल टू 8. अब आ जाते हैं सेकंड इक्वेशन पे. पहले x का टर्म लिखना है. देखिए इक्वेशन हम जब भी लिखेंगे तो पहले x का टर्म लिखना है, उसके बाद y का, और उसके बाद कांस्टेंट. तो यहाँ पे x का टर्म जो है वो सिंगल है, 2 टाइम्स x ऑफ s, और y के दो डिफरेंट टर्म्स है, तो इसमें से कैपिटल Y ऑफ s हमें कॉमन लेना है. रिमेनिंग यहाँ से रहेगा s और यहाँ से रहेगा -1. ठीक है. सो पहले 2 टाइम्स x ऑफ s एंड प्लस s -1 इनटू कैपिटल Y ऑफ s एंड इक्वल टू 3 एज इट इज. अभी ये हो गया स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गया. स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्मेट मींस ax प्लस by इक्वल टू c, लीनियर इक्वेशन. ये फॉर्मेट में आ गया. पहले x की टर्म, फिर y की टर्म, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म. सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में पहले x की टर्म लिखा है, उसके बाद y की टर्म लिखा है, और फिर कांस्टेंट टर्म लिखा है.
अब ये दोनों इक्वेशन को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। जैसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे एज यूजुअल, बट अब देखिए साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम कैल्सी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे कैल्सी यूज करना नहीं है बिकॉज वी आर हैविंग हियर अनदर वेरिएबल अनदर पैरामीटर एस। यहाँ पे एस प्रेजेंट है, आप कैल्सी में एस नहीं ले सकते। अगर सपोज वेरिएबल के कोएफिशिएंट अगर कांस्टेंट आते हैं तो फिर ये कैल्सी से सॉल्व होगा। वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट है वो कांस्टेंट मींस नंबर्स नहीं है, तो फिर ये कैल्सी से सॉल्व नहीं कर सकते। सो वी हैव टू सॉल्व इट मैनुअली। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है, इट मींस दैट मैंने आपको मेथड पहले भी एक्सप्लेन किया है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है, इट मींस दैट कि दो वेरिएबल प्रेजेंट है, दो में से किसी एक वेरिएबल को हमें कैंसल करना है। दो में से किसी एक वेरिएबल को यहाँ से कैंसल करना है। तो वी विल ट्राई टू कैंसल वेरिएबल y फ्रॉम दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन से हमें वेरिएबल y को सपोज कैंसल करना है। वेरिएबल y कैंसल कब हो सकता है? इफ यू सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशन, if you subtract these two equations, first equation के अंदर y का जो टर्म है इट इज पॉजिटिव, सेकंड इक्वेशन के अंदर y का जो टर्म है इट इज आल्सो पॉजिटिव। अब y कैंसिल कब हो सकता है? अगर दोनों का हमने सब्ट्रैक्शन किया तो पॉसिबिलिटी है कि कैंसिल होगा, एडिशन करने पे तो कैंसिल नहीं होगा। बट अब सब्ट्रैक्ट करने से वो भी यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल नहीं होगा बिकॉज फर्स्ट इक्वेशन के अंदर y का जो कोएफिशिएंट है इट इज 3 और सेकंड इक्वेशन के अंदर y का जो कोएफिशिएंट है इट इज s-1। कोएफिशिएंट डिफरेंट है, y का कोएफिशिएंट डिफरेंट है। जब तक सेम कोएफिशिएंट नहीं होगा तब तक वो कैंसिल नहीं हो सकता। तो फिर क्या करोगे कि कोएफिशिएंट को हमें सेम लेकर आना है, y का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन के अंदर सेम रहना चाहिए, तब जाके वो वेरिएबल y को हम कैंसिल कर सकते हैं। सो अब ये सेम कब आएगा? ऊपर जो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर y का कोएफिशिएंट 3 है, उससे 3 से आप नीचे के इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट s-1 है, तो ये s-1 से आप फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो सो दैट कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। मींस व्हाट आई एम सेइंग कि पहले तो इसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऐसे मार्क करते हैं सो दैट वो कैलकुलेशन करने में या लिखने में इजी हो जाएगा। वी विल मार्क इट एज इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है 3, तो इसे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है 3 और सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है s-1। तो फर्स्ट इक्वेशन को s-1 से मल्टीप्लाई करना है और फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 3 है, तो सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। अल्टरनेट जो ऊपर का कोएफिशिएंट है उससे नीचे मल्टीप्लाई करो, जो नीचे का कोएफिशिएंट है उससे ऊपर मल्टीप्लाई करो। तो s-1 इंटू इक्वेशन 1 एंड 3 इंटू इक्वेशन 2। तो अभी मल्टीप्लाई करने के बाद पहले इक्वेशन हम यहाँ पे लिख देंगे। फर्स्ट इक्वेशन को s-1 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन जो है इट विल बिकम s-1 इंटू s-2 इंटू कैपिटल X ऑफ s, फर्स्ट टर्म। इसके बाद सेकंड टर्म को s-1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा प्लस 3 टाइम्स s-1 इंटू कैपिटल Y ऑफ s। राइट हैंड साइड को s-1 से मल्टीप्लाई किया तो ये राइट हैंड साइड आ जाएगा 8 टाइम्स s-1। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन पे आ जाते हैं। सेकंड इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट टर्म को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3 टू 6 टाइम्स कैपिटल X ऑफ s। सेकंड टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा प्लस 3 इंटू s-1 इंटू कैपिटल Y ऑफ s एंड राइट हैंड साइड को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3 3 9। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी ये दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग दीज टू इक्वेशंस। अब ये दोनों इक्वेशंस को अगर सब्ट्रैक्ट किया तो लेफ्ट हैंड साइड से सेकंड टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो पहले तो सब्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड टर्म ऑफ फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज। फर्स्ट इक्वेशन का मैंने लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिख दिया। तो सब्ट्रैक्ट जब हम इक्वेशंस को करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का सब्ट्रैक्शन लेफ्ट हैंड साइड से करना है, राइट हैंड साइड का सब्ट्रैक्शन राइट हैंड साइड से करना है। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें से सेकंड इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करना है, तो ये हो गया -6 टाइम्स X ऑफ s एंड -3 टाइम्स s-1 इंटू कैपिटल Y ऑफ s। ये लेफ्ट हैंड साइड को ऊपर के लेफ्ट हैंड साइड में से हमने माइनस कर दिया। इसके बाद अब राइट हैंड साइड का सब्ट्रैक्शन, तो फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड एज इट इज आएगा और उसमें से आपको सेकंड इक्वेशन के राइट हैंड साइड को माइनस करना है, मींस -9 हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड विल बी 8 टाइम्स s-1 -9। नाउ अब देखते हैं कि अब यहाँ पे कौन सी टर्म्स कैंसिल हो सकती है।
तो 3 times s minus 1 into capital Y of s and minus 3 times s minus 1 into capital Y of s, it will be get cancelled. 3 times s minus 1 into capital Y of s and minus 3 times s minus 1 into capital Y of s, it will be get cancelled. Remaining terms on left hand side are s minus 1 into s minus 2 into capital X of s and minus 6 times capital X of s and right hand side as it is. These terms will be remaining. ठीक है. Now अभी लेफ्ट हैंड साइड जो है इट इज इन टर्म्स ऑफ सिंगल वेरिएबल x. लेफ्ट हैंड साइड कंटेन्स सिंगल वेरिएबल x. अब जो इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल थे x और y, तो वेरिएबल y हमने रिमूव कर दिया, y का टर्म कैंसिल हो गया. नाउ इक्वेशन कंटेन्स सिंगल वेरिएबल x, तो हमें यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है. कैपिटल X का वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड करना है, कैपिटल X ऑफ s का. तो अभी कैपिटल X ऑफ s इट इज प्रेजेंट एट टू डिफरेंट प्लेसेस. तो पहले तो कैपिटल X ऑफ s, कैपिटल X ऑफ s लेफ्ट हैंड साइड से इसे हम कॉमन ले लेंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड से कैपिटल X को कॉमन लिया तो रिमेनिंग रहेगा s minus 1 into s minus 2 and minus 6. s minus 1 into s minus 2 minus 6 कैपिटल X ऑफ s ये हमने कॉमन लिया. ठीक है. राइट हैंड साइड अब चेक कर लेते हैं. राइट हैंड साइड पे ये 8 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बिकम 8s minus 8 minus 9. राइट हैंड साइड विल बिकम 8s minus 8 minus 9. सो कैपिटल X ऑफ s का वैल्यू अभी आ जाएगा. राइट हैंड साइड 8s minus 8 minus 9 it will be minus 17. तो 8s minus 17 and upon s minus 1 into s minus 2 minus 6. ये हो गया वैल्यू ऑफ कैपिटल X ऑफ s. तो साइमल्टेनियस इक्वेशन सोल्व कर रहे थे, एक वेरिएबल हमने कैंसिल कर दिया, सेकंड वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पे आ गया, कैपिटल X का वैल्यू आ गया. अब ये कैपिटल X का वैल्यू यूज करके हम कैपिटल Y का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वो बाद में कर लेंगे. कैपिटल X आ गया, इस पे से अभी स्मॉल x हमें फाइंड करना है. एक्चुअल जो प्रॉब्लम है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करना है. डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करना है, इट मींस दैट वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y. तो स्मॉल x y के वैल्यूज हमें फाइंड करना है बिकॉज प्रॉब्लम वाज गिवन इन टर्म्स ऑफ स्मॉल x एंड स्मॉल y. यहाँ पे कैपिटल X कैपिटल Y के फॉर्मेट में हमने खुद इसे ट्रांसफॉर्म किया था बाय टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. हमें कैपिटल X नहीं चाहिए, हमें तो स्मॉल x लाना है. तो अब कैपिटल X से स्मॉल x कैसे आएगा? इफ यू टेक इट्स लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, कैपिटल X का अगर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर फाइंड किया तो वो स्मॉल x आ जाएगा. मींस अभी ये फंक्शन का हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है. बट बिफोर दैट पहले राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर दो. सिंप्लीफिकेशन मींस ये s minus 1 into s minus 2 ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो. ये ब्रैकेट्स को अगर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा s स्क्वायर माइनस ट्वाइस s माइनस s प्लस 2 एंड माइनस 6 एज इट इज. सो कैपिटल X ऑफ s का वैल्यू सिंप्लीफाइड वैल्यू आएगा, न्यूमरेटर एज इट इज 8s minus 17, डिनोमिनेटर के अंदर s स्क्वायर माइनस ट्वाइस s माइनस s इट विल बी माइनस थ्राइस s एंड प्लस 2 माइनस 6 इट विल बी माइनस 4. तो 8s minus 17 अपॉन s स्क्वायर माइनस थ्राइस s प्लस 4 ये हो गया सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ कैपिटल X. अब क्या करना है? Mark it as equation number 3, and if you take inverse Laplace transform of this equation, then we will get value of small x, जो कि हमें फाइंड करना है. डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करना है मींस एक्स वाई के वैल्यूज हमें यहाँ पे फाइंड करना है, स्मॉल एक्स वाई के वैल्यूज हमें फाइंड करना है. तो अब ये कैपिटल एक्स से स्मॉल एक्स कैसे आएगा? इफ यू टेक इट्स इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर लिया तो स्मॉल एक्स का वैल्यू आ जाएगा. ठीक है. नाउ अभी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेफ्ट हैंड साइड का अगर लिया तो हमें स्मॉल x ऑफ t का वैल्यू आ जाएगा, बट राइट हैंड साइड पे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने से डायरेक्टली ये सोल्व नहीं होगा. इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 8s minus 17 अपॉन s स्क्वायर माइनस 3s minus 4, डिनोमिनेटर जो है इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इस पे अगर हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर लेना है या इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर फाइंड करना है तो पहले तो इसके दो लीनियर फैक्टर फाइंड कर लो. फाइंड टू लीनियर फैक्टर्स and after that we will separate them by using partial fraction. तो s square minus 3s minus 4 इसके दो लीनियर फैक्टर आएंगे s plus 1 and s minus 4. s square minus 3s minus 4 it is a quadratic equation, उसके लीनियर फैक्टर आ जाएंगे s plus 1 and s minus 4. अब पार्शियल फ्रैक्शन से हम ये दोनों ब्रैकेट को सेपरेट कर सकते हैं by using method of partial fraction. We can write it as 8s minus 17 upon s plus 1 into s minus 4 it is equal to a upon s plus 1 plus b upon s minus 4. Now we have to find the values of a and b. तो a और b के वैल्यूज फाइंड करना है, तो उसके लिए अभी क्या करना है? कंप्लीट इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड s plus 1 into s minus 4,
तो कंप्लीट इक्वेशन को ये डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग कंप्लीट इक्वेशन बाय s प्लस 1 इंटू एस माइनस 4। अब इससे अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है पहले तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करने के बाद में ये कैंसिल हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे अगर मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड पे s प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग रहेगा a इंटू एस माइनस 4। सेकंड टर्म से अगर मल्टीप्लाई किया तो s माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग रहेगा b इंटू एस प्लस 1। ये दोनों ब्रैकेट को राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया तो s प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग विल बी a इंटू एस माइनस 4। सेकंड से मल्टीप्लाई किया तो s माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग विल बी b इंटू एस प्लस 1। सो सेम थिंग आई हैव रिटन इट हियर एट s माइनस 17। लेफ्ट हैंड साइड का जो न्यूमरेटर है ये एज इट इज, ये तो एज इट इज रहेगा न्यूमरेटर एट s माइनस 17, एंड राइट हैंड साइड का फर्स्ट टर्म a इंटू एस माइनस 4 प्लस b इंटू एस प्लस 1। नाउ अभी a और b के वैल्यूज फाइंड करना है। तो इसके लिए मेथड ये है कि इफ यू वांट टू फाइंड वैल्यू ऑफ a का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो b वाला टर्म 0 में कन्वर्ट होना चाहिए, और b का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो a वाला टर्म 0 में कन्वर्ट होना चाहिए। सो पहले हमें a का वैल्यू फाइंड करना है। a फाइंड करना है मीन्स सेकंड टर्म शुड बिकम 0। तो अब ये सेकंड टर्म 0 कैसे होगा, यहाँ पे s प्लस 1 लिखा है, इससे अगर 0 में कन्वर्ट करना है तो वी कैन सब्स्टिट्यूट हियर s इक्वल टू माइनस 1। ये ब्रैकेट के अंदर s इक्वल टू माइनस 1 अगर पुट किया तो माइनस 1 प्लस 1, ये जो सेकंड टर्म है b वाला ये कंप्लीट 0 हो जाएगा एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a। तो कंप्लीट इक्वेशन के अंदर पहले s इक्वल टू माइनस 1 पुट कर दो, s इक्वल टू माइनस 1, फिर आपको कंप्लीट इक्वेशन में पुट करना है लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा 8 into minus 1 means minus 8 minus 17, it is equal to a in bracket minus 1 minus 4 and plus second term b, it will be 0. Then minus 8 minus 17, it is minus 25, it is equal to a into minus 5. So from that value of a, it is equal to 5. a का वैल्यू आ गया। अब हमें b का वैल्यू फाइंड करना है। तो b का वैल्यू फाइंड करना है तो फर्स्ट टर्म शुड बिकम 0। अब फर्स्ट टर्म 0 कब आ सकता है, अगर ये ब्रैकेट 0 में कन्वर्ट हो गया तो फर्स्ट टर्म 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट को अगर 0 में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे s माइनस 4 लिखा है, s इक्वल टू प्लस 4 पुट कर दो, s इक्वल टू यहाँ पे प्लस 4 अगर पुट किया तो 4 माइनस 4 इट विल बी 0। तो पुट s इक्वल टू 4। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी s इक्वल टू 4 पुट करना है। तो एट 4 ये हो जाएगा 32 माइनस 17, एंड फर्स्ट टर्म ऑफ राइट हैंड साइड इज 0, सेकंड टर्म विल बिकम b in bracket 4 plus 1. So 32 minus 17 means 15, it is equal to b into 5. So value of b it is equal to 3. So in this way a और b के वैल्यूज यहाँ पे आ गए। अब ये a और b के वैल्यूज को हमें वापस से इक्वेशन के अंदर पुट करना है जहाँ पे हमें पार्शियल फ्रैक्शन हमने अप्लाई किया था। So इक्वेशन 3 कैपिटल x of s it is equal to, एक मिनट आई एम टेकिंग इट बैक, यस यहाँ पे हमने पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई किया है। We have applied partial fraction on this bracket at s minus 17 upon s plus 1 into s minus 4, it is equal to a upon s plus 1 plus b upon s minus 4। तो यहाँ पे a का वैल्यू हो गया 5 upon s plus 1 as it is, and plus value of b it is 3 upon s minus 4 as it is। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है it is value of capital X of s, means indirectly equation 3 का वैल्यू capital X of s का वैल्यू ये आ गया a upon means 5 upon s plus 1 plus 3 upon s minus 4. So same thing I have written it here. Equation 3 will give capital X of s, it is equal to 5 upon s plus 1 plus 3 upon s minus 4. And now taking inverse Laplace transform of this equation. अभी क्या है, डिनोमिनेटर के अंदर लीनियर फैक्टर आ गया, s का पावर 1 है और दोनों ब्रैकेट सेपरेट भी हो गए। अब हम इसका इनवर्स Laplace ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। So taking inverse Laplace transform, L inverse of capital X of s, it is equal to, राइट हैंड साइड में का फर्स्ट टर्म 5 कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, इट विल बी 5 into L इनवर्स ऑफ 1 upon s plus 1, एंड सेकंड टर्म के अंदर 3 न्यूमरेटर में कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, सेकंड टर्म विल बिकम plus 3 into L inverse of 1 upon s minus 4। and now we know that L inverse Laplace transform of 1 upon s plus 1, it is equal to e to the power minus t, and L inverse of 1 upon s minus 4, it is equal to e to the power 4t। और लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा है L inverse of capital X of s, it will be small x of t, it will be small x of t,
First term will be 5 into e to the power minus t, and second term will be 3 into e to the power 4t. So x of t, it is equal to 5 times e to the power minus t and plus 3 times e to the power 4t. ये हो गया वैल्यू ऑफ स्मॉल x of t, जो कि हमारा फर्स्ट रिक्वायर्ड रिजल्ट है. देखिए, एक तो हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं, मींस x और y दोनों के वैल्यूज हमें फाइंड करना है. उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन भी सोल्व कर रहे हैं, दोनों भी. तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मींस वेरिएबल x और y दोनों के वैल्यूज हमें फाइंड करना है. अभी सिर्फ x का वैल्यू है, y का वैल्यू अभी हमें फाइंड करना बाकी है. तो अब नेक्स्ट पार्ट, y का वैल्यू कहाँ से फाइंड कर सकते हैं. सो जहां पे हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया था, सेकंड पार्ट, टू फाइंड वैल्यू ऑफ y ऑफ t. अभी हमें स्मॉल y ऑफ t का वैल्यू फाइंड करना है, और ये वैल्यू कहां से आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2. फ्रॉम इक्वेशन 2. अब इक्वेशन 2 क्या है, लेट्स चेक इट. व्हाट इज द इक्वेशन नंबर 2? सो दीज आर द टू इक्वेशंस जहां पे हमने साइमल्टेनियसली ये इक्वेशन को सॉल्व किया था. इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये दोनों इक्वेशन को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया. कोएफिशिएंट सेम लेकर आ गया, उसमें से वेरिएबल y को कैंसिल किया था, और वेरिएबल y कैंसिल होने के बाद हमें x का वैल्यू आया. अब क्या करना है कि हमारे पास में कैपिटल X का वैल्यू अवेलेबल है. वी आर हैविंग दिस वैल्यू कैपिटल X. अब ये कैपिटल X का वैल्यू आप एक तो इक्वेशन 1 में पुट करो या इक्वेशन 2 में पुट करो, और कैपिटल X का वैल्यू पुट करने के बाद कैपिटल Y हमें फाइंड करना है. तो इजी जो रहेगा उसमें हमें कैपिटल X का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. एंड आई थिंक सेकंड इक्वेशन विल बी इजी, क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू कैपिटल X लिखा है. फर्स्ट में अगर पुट किया तो ये s-2 इंटू कैपिटल X आएगा. तो सेकंड इक्वेशन आई थिंक इट विल बी इजी टू सॉल्व. 2 इंटू कैपिटल X ऑफ S. तो यहाँ पे हमें कैपिटल X का वैल्यू पुट करना है सेकंड इक्वेशन के अंदर. ठीक है. सो इक्वेशन 2 जो है, पहले तो वो एज इट इज लिख लेंगे हम. ये इक्वेशन 2 मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया. 2 टाइम्स कैपिटल X ऑफ S प्लस s-1 इंटू कैपिटल Y ऑफ S इक्वल टू 3. इट इज सेकंड इक्वेशन एज इट इज. अब यहाँ पे हमें कैपिटल X का वैल्यू पुट करना है, जो कि हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके फाइंड किया था. तो कैपिटल X का वैल्यू चेक कर लेते हैं. व्हाट इज वैल्यू ऑफ कैपिटल X? इक्वेशन नंबर 3 में कैपिटल X का वैल्यू लिखा है, एंड वी गॉट दिस वैल्यू बाय सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन. एक वेरिएबल को कैंसिल करके, y को कैंसिल करके हमने x का वैल्यू फाइंड किया था. तो इक्वेशन 3 के अंदर कैपिटल X का वैल्यू प्रेजेंट है एट s-17 अपॉन s² माइनस 3s माइनस 4. तो ये वैल्यू को अभी वहां पे हमें पुट करना है, substituting value of capital X of S from equation 3. तो ये हो जाएगा 2 into 8s-17 upon s square minus 3s minus 4 plus s-1 into capital Y of S equal to 3. Now we will find value of capital Y of S from above equation in terms of parameter S and then take its inverse Laplace transform. Means what? कि अब इसके आगे का मेथड वही है, सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना है. जैसे कैपिटल X of S हमने फाइंड किया सिंप्लीफाइड वैल्यू, वैसे तो पहले क्या करना है कि ये इक्वेशन के अंदर कैपिटल Y प्रेजेंट है, यहाँ से हमें कैपिटल Y का वैल्यू फाइंड करना है. पहले तो कैपिटल Y का वैल्यू फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ S, और कैपिटल Y का वैल्यू अगर आ गया तो फिर हम इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने अगर लिया तो उस पे से स्मॉल y का वैल्यू आ जाएगा. ठीक है. पहले कैपिटल Y का वैल्यू फाइंड करना है ये इक्वेशन से, एंड दिस वैल्यू ऑफ कैपिटल Y विल बी इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर S. फिर उसका अगर हमने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर लिया तो उसपे से स्मॉल y का वैल्यू आ जाएगा. सो अब जो नेक्स्ट टारगेट है, वी नीड वैल्यू ऑफ कैपिटल Y. पहले कैपिटल Y का वैल्यू. तो लेफ्ट हैंड साइड की जो फर्स्ट टर्म है 2 into 8s-17 upon s square minus 3s minus 4, इसको पहले राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर कर दो. लेफ्ट हैंड साइड विल बी s-1 into कैपिटल Y of S, राइट हैंड साइड पे 3 as it is, and minus 2 times 8s-17 upon s square minus 3s minus 4. ठीक है. अभी फिर से कैपिटल Y of S फाइंड करना है, तो ये s-1 से इक्वेशन को डिवाइड करना होगा, बट बिफोर दैट पहले ये राइट हैंड साइड की जो टर्म्स है इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाइड, तो इट विल बी 3 into s square minus 3s minus 4 and minus 2 times that is minus 17 upon s square minus 3s minus 4. अब जो है ये s-1 को राइट साइड पे ट्रांसफर कर दो, तो ये नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहाँ पे s-1, तो कैपिटल Y of S का वैल्यू आ जाएगा. एंड न्यूमरेटर के अंदर जो सिंप्लीफिकेशन करना है, ये 3 को फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को सेकंड ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो. So this will be the simplification inside the numerator. So left hand side will be Y of S
न्यूमरेटर में फर्स्ट ब्रैकेट को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3s² माइनस 9s माइनस 12। सेकंड ब्रैकेट को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -16s प्लस 34, और अपॉन में ये s-1 जो हमने राइट साइड पर ट्रांसफर किया था ये नीचे आ गया s-1 एंड इनटू s² माइनस 3s माइनस 4 एज इट इज। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ कैपिटल Y ऑफ s इट इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में टर्म्स को कंबाइन करना है, 3s² का सिंगल टर्म है, -9s एंड -16s, it will be -25s, -12 प्लस 34 it will be +22। तो ये दो टर्म्स हमने यहाँ पे कंबाइन कर दिए। डिनोमिनेटर के अंदर s-1 एज इट इज, s² माइनस 3s माइनस 4 इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से इसके दो लीनियर फैक्टर यहाँ पे लिख दिया, s+1 इंटू s-4। भी लीनियर फैक्टर लिखने का बेनिफिट ये है कि अभी हम इस पर डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इट इज 2, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इट इज 3। नीचे s के 3 ब्रैकेट है तो तीनों को मल्टीप्लाई किया तो s³ का टर्म आएगा, मींस वी आर हैविंग अ परफेक्ट क्वोशंट। सो अभी इस पे हम पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन वी कैन राइट इट एज a अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट प्लस c अपॉन सेकंड फैक्टर प्लस a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकंड फैक्टर प्लस c अपॉन थर्ड फैक्टर। अभी इसे सोल्व करने का मेथड वही है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है ये तीनों ब्रैकेट से कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग कंप्लीट इक्वेशन बाय s-1 इंटू s+1 इंटू s-4। तो पहले तो ये लेफ्ट हैंड साइड से कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म ऑन लेफ्ट हैंड साइड विल बी 3s² माइनस 25s प्लस 22, जो न्यूमरेटर है ये एज इट इज। अभी राइट हैंड साइड के फर्स्ट टर्म से अगर मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट टर्म के अंदर सिर्फ s-1 और s-1 कैंसिल होगा, रिमेनिंग आएगा a इंटू s+1 इंटू s-4। फिर सेकंड टर्म से वापस ये तीनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो s+1 यहाँ पे कैंसिल होगा, सेकंड टर्म के अंदर s+1 कैंसिल होगा, रिमेनिंग रहेगा b इंटू s-1 इंटू s-4। फिर थर्ड टर्म से अगर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे s-4 कैंसिल हो जाएगा, थर्ड टर्म के अंदर s-4 वाला ब्रैकेट कैंसिल होगा, रिमेनिंग विल बी c इंटू s-1 इंटू s+1। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन एज इट इज, राइट हैंड साइड पे जो ब्रैकेट्स है इसे मल्टीप्लाई कर दो, s+1 इंटू s-4, ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, राइट हैंड साइड पे a इंटू s+1 इंटू s-4, ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा s² माइनस 4s एंड s² माइनस 4s एंड रिमेनिंग टर्म प्लस s-4, ये एज इट इज। इसके बाद नेक्स्ट b इंटू s-1 एंड s-4, ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, सो ये सेकंड टर्म b इंटू s² माइनस 4s माइनस s-4, ये हो गया। फिर थर्ड टर्म के अंदर c इंटू s-1 इंटू s+1, ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा थर्ड टर्म प्लस c इंटू s² प्लस s माइनस 1। ठीक है, नाउ अगेन लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, राइट हैंड साइड भी फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर -4s एंड प्लस s मिडिल टर्म्स, ये हो जाएगा -3s, तो s² माइनस 3s माइनस 4 एज इट इज। सेकंड ब्रैकेट के अंदर -4s एंड -s, इट विल बी -5s, तो ये यहाँ पे हो गया -5s। थर्ड ब्रैकेट के अंदर +s -s कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग c इंटू s² माइनस 1। नाउ अभी ए बी सी को भी जो है वो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ए को फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है, बी को सेकंड ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है और सी को थर्ड ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, ए को फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये फर्स्ट टर्म, बी को सेकंड ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया और सी को थर्ड ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया। अभी कंप्लीट ब्रैकेट्स का जो मल्टीप्लीकेशन था वो यहाँ पे एंड हो गया, वी आर हैविंग सिंपल अलजेब्राइक इक्वेशन नाउ, ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। नाउ अभी मल्टीप्लिकेशन क्यों किया है, बिकॉज वी आर गोइंग टू इक्वेट द कोएफिशिएंट्स ऑफ s² s एंड कांस्टेंट टर्म। लेफ्ट हैंड साइड पे एक s² का टर्म प्रेजेंट है, s का टर्म प्रेजेंट है और कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है। तो राइट हैंड साइड पे भी आपको क्या करना है, s² की टर्म्स को आपको कंबाइन करना है, उसके बाद s की टर्म्स को कंबाइन करना है और उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स को कंबाइन करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, राइट हैंड साइड पे s² की टर्म्स एक ब्रैकेट में ले लो, तो a s² प्लस b s² एंड प्लस सी s², ये तीनों में से s² हमने अगर कॉमन लिया तो रिमेनिंग रहेगा a प्लस बी प्लस सी। अब इसके बाद s की टर्म्स को कंबाइन लेना है, वेरिएबल s हमें कंबाइन लेना है,
तो फ्रॉम हियर वी कैन टेक s कॉमन, फ्रॉम हियर वी कैन टेक s कॉमन, ये दोनों में से s को कॉमन लेना है, प्लस s कॉमन लिया तो रिमेनिंग रहेगा -3a - 5b। इसके बाद रिमेनिंग कांस्टेंट टर्म को एक ब्रैकेट में डाल दो, तो कांस्टेंट टर्म +4a -4a + 4b एंड -c, ये हो गए कांस्टेंट टर्म्स। एंड नाउ equating similar coefficients of s from both sides, equating similar coefficients of s from both sides means s square को कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड और s square का कोएफिशिएंट राइट हैंड साइड, ये दोनों को इक्वेट करना है। कोएफिशिएंट ऑफ s ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड कोएफिशिएंट ऑफ s ऑन राइट हैंड साइड, ये दोनों को इक्वेट करना है, और कांस्टेंट टर्म ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ये दोनों को इक्वेट करना है। तो तीन इक्वेशंस आएंगे। पहले कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर ऑन राइट हैंड साइड a + b + c इट इज इक्वल टू 3, ये एक इक्वेशन हो गया। इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ s ऑन राइट हैंड साइड -3a - 5b इट इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ s ऑन लेफ्ट हैंड साइड इट इज -25, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। इसके बाद कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म्स ऑन राइट हैंड साइड -4a + 4b + -c इक्वल टू कांस्टेंट टर्म ऑन लेफ्ट हैंड साइड 22, तो इसमें से थर्ड इक्वेशन आ गया। So now we are having 3 simultaneous equations containing 3 unknowns, 3 constant. 3 simultaneous equations आ गए containing 3 constant. But first equation contain ABC, second equation के अंदर A और B present है, C नहीं है, तो पहले equation को complete format में हम यहाँ पे लिख देंगे। First equation no change as it is. Second equation में C का term add करना है, तो ये 0C लास्ट में एक term यहाँ पे मैंने add कर दिया। थर्ड इक्वेशन में ABC तीनों भी प्रेजेंट है, तो नो चेंज इन द थर्ड इक्वेशन। अब ये तीनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली कैल्सी से सॉल्व कर सकते हैं। We can solve these 3 equations simultaneously by using calci, and we will get the values of A, B, and C. A equal to 0, B equal to 5, and C equal to -2. A equal to 0, B equal to 5, and C equal to -2. This way we got the values of A, B, and C. ठीक है। नाउ अब इसके आगे क्या करना है? नाउ सब्स्टिट्यूट these values of a, b and c in substitute these values of a, b and c in value of capital Y, जहां पे हमने पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई किया था। यस, दिस वन, यहाँ पे हमें कैपिटल Y ऑफ S का वैल्यू था, कैपिटल Y ऑफ S इक्वल टू दिस वन, एंड ये सेम राइट हैंड साइड को हमने पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई किया था। इट मींस दैट अभी कैपिटल Y का वैल्यू आएगा a/s-1, यहाँ पे a का वैल्यू पुट करना है, b/s+1 यहाँ पे b का, और c/s-4 यहाँ पे c का। ठीक है, सो वी विल गेट हियर, पहले तो ये सेम जहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई किया था वो इक्वेशन मैंने लिख दिया, एंड दिस लेफ्ट हैंड साइड इट इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ कैपिटल Y ऑफ S। तो कैपिटल Y ऑफ S इट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ a, इट इज 0/s-1 प्लस वैल्यू ऑफ b 5/s+1, वैल्यू ऑफ c -2/s-4। तो कैपिटल Y ऑफ S लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, फर्स्ट टर्म जो है ये तो 0 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म विल बी गेट रिमूव्ड। सेकंड टर्म में 5 कांस्टेंट है, 5 को बाहर ले लो, वी कैन राइट इट एज 5 × 1/s+1। थर्ड टर्म प्लस इंटू -2, तो थर्ड टर्म के अंदर -2 न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, उसे बाहर ले लो, वी कैन राइट इट एज -2 × 1/s-4। एंड नाउ टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, so L inverse of Y of S equal to 5 × L inverse of 1/s+1 and -2 × L inverse of 1/s-4. So L inverse of Y of S it is small y of t equal to 5 constant है, L inverse of 1/s+1 it is 5 × e⁻t, and -2 constant है, L inverse of 1/s-4 it is e⁴t, तो ये आ गया -2 × e⁴t। तो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y। भी दोनों वैल्यूज को एक बार फिर से कंबाइनली लिख देते हैं। देयरफॉर x of t it is equal to 5 e⁻t plus 3 e⁴t, and y of t it is equal to 5 e⁻t minus 2 times e⁴t is the required solution of given simultaneous linear differential equations. Okay, so in this way linear differential equations को भी हम Laplace transform यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ Laplace transform. Okay, so with that we will stop here. Thank you very much.